Hi, hello, and welcome back to Rajlakshmi Solutions Private Limited's weekly webinar. Well, today we are here with the topic manufacturing process in Tally Prime. Tally Prime is a wonderful software wherein there are multiple features which is not known to people. So there are so many like features which is specifically for Tally Prime. If there are any customer who's still not updated into from Tally ERP 9 to Tally Prime, request you to please update yourself because this is the right time. There are multiple features which is specified on Tally Prime but which is not there in Tally ERP 9. So request you to please update yourself for the Tally Prime. Well, moving ahead towards today's topic, so that is all about manufacturing process. So there are multiple clients with multiple processes and specifically in manufacturing. So on demand, we have taken this topic today. So before moving ahead with the topic, let me just take an introduction of Rajlakshmi Solutions Private Limited. Basically, Rajlakshmi Solutions Private Limited deals with multiple softwares and services. So when I specify about software, it is all about Tally Prime, like an accounting software, and we are part of SAP Business One, a key for every business solutions, and we are part of Matrix CRM, a customer relationship management software. And beyond this, we are part of Skill India, a government project which is specifically concerned for the education and employment of students. And we are part of services like human resource service, and we are part of services like digital marketing as well. Digital transformation is one of the most important thing which is very very essential for every organization in this scenario, and the system process of work from home always matters. So yes, Rajlakshmi Solutions is a service provider with 100% quality assurance. This is all about the services and the software, and this pandemic has made us to be part of Tally on cloud as well. So basically, sit anywhere and everywhere, stay comfortable with your work, and no distractions in your work. So this is all about Tally on cloud. So this is all about the services and softwares of Rajlakshmi Solutions Private Limited. If you have any questions or any doubts, request you to please connect us. We are open to guide you about the softwares as well as about the services which is there and which is very very essential for any organization. Well, now let's see what is today's topic, and before moving ahead towards the topic, let me give you instructions about the webinar of today. So we are like this webinar is getting recorded, and this webinar will be updated in YouTube channel and the social media channels of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So in case if you have any questions or any doubts, you can go and check on YouTube channel. And along with that, if you are joining little, if you missed out any point, or if you're joining late, or if you're leaving early, doesn't matter at all. You can just watch this in our YouTube channel by a couple of days. This will be updated in YouTube as well. Well, so moving ahead with the speakers today, so we do have three different speakers, that is Mr. Vikram and Ms. Spinach and Mr. Bhagwati. So we have a demo presenter, live demo with the Tally software. And we have a presentation today. So the theoretical part always matters and supports for the live demo. And we have a resource person who will just add on certain things according to his exposure and experience. So let us introduce the person who's going to handle today. So hi, Mr. Vikram. Mr. Vikram, are you here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hi, Vikram. Thanks for joining. Hearty welcome to the Yes. weekly Thank you, ma'am. webinar. And Ms. Pinaj, are you here? Yes, ma'am. Hey, hi, Pinaj. Thanks for joining. Thank you, ma'am. And Mr. Bhagwati, are you here? Yeah, I am available over here, Deepa. Good evening. Good evening, Mr. Bhagwati. Thanks for joining. Yeah, thank Well, this is all about today's speaker. So the speakers are ready. So why to wait? Let's get into today's webinar. So request Mr. Vikram and Ms. Pinaj to move ahead with your presentation. Come live demo onto us from the software. So moving ahead, and by the meantime, let me just inform one more thing. If you have any doubts or questions in terms of like the topic or in terms of any software, request you to please connect us like in the comment box,
or please give a space to the speakers. By end of the topic, we can just have a session of discussion about the question and answer session. So moving ahead to the presentation. So it's over to you, Mr. Vikram and Ms. Pinaj. Hello, good evening all. Myself Pina Sheikh, representing on behalf of Rajlakshmi Solution Private Limited. On behalf of the management and the entire team of Rajlakshmi Solutions, I would like to welcome all the participants present here. So moving ahead to our today's topic is, next slide sir, manufacturing process in Tally Prime. Next, first we will see what is manufacturer. Manufacturer is a person or company that produces finished good from raw materials by using various tools, equipment and processes and then sells the good to customers. मैन्युफैक्चरर ये एक पर्सन या कंपनी है जो वेरियस टूल इक्विपमेंट का यूज करके रॉ मटेरियल से फिनिश गुड प्रोड्यूस करती है. नाउ वी विल सी व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन टैली. You can create a manufacturing journal and enter detail of component used to produce the finished goods or the co-product, byproduct, scrap products during the manufacture of the finished goods and so on. First, gateway of tally, inventory voucher, YEP7 stock general and select manufacturing general. In manufacturing or assembling organization, there are number of components that go into the manufacturing or assembling of finished good. Once the bill of material is created, you can use manufacturing and specify the quantity of finished good that are to be manufactured. Manufacturing general is used to make dispatch of multiple goods to manufacture a single product. मैन्युफैक्चरिंग जनरल आप बना सकते हैं और इसमें फिनिश गुड या को प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, स्क्रैप. एडवांटेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, Tally Prime provide the capability to record creation of raw materials and their consumption into semi-finished good and finished product. Manufacturers can easily segregate their stock by creating stock groups and can see stock availability information group wise in Tally Prime. मैन्युफैक्चरिंग के लिए Tally Prime में रॉ मटेरियल के क्रिएशन को रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटी है और मैन्युफैक्चरर आसानी से स्टॉक ग्रुप बनाकर अपने स्टॉक को अलग कर सकते हैं और Tally Prime में स्टॉक अवेलेबिलिटी ग्रुप वाइज देख सकते हैं. How can calculate manufacturing cost in Tally? Go to Gateway of Tally, display Statement of Inventory, Cost Estimation. The item estimate screen appears shown below. Press F12 to enable the option and view the required detail. Show quantities on. Enable this option. Display on the quantity of each stock item will be shown in Cost Estimation Report. इस तरह आप कॉस्ट एस्टिमेशन रिपोर्ट देख सकते हो. तो आज हमने देखा मैन्युफैक्चरर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है और टैली में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर द live demonstration. So I request Mr. Vikram to proceed ahead for the live demonstration. Thank you. Thank you, Pinaj ma'am. Hello everyone. My name is Vikram. I'm from Rajlakshmi Solution Private Limited. I'm sharing my screen. My screen visible or not? Yeah, Vikram. Visible. Thank you. हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन Tally Prime लाइव डेमो. मैंने ऑलरेडी डेटा क्रिएट किया हुआ है, बनाया हुआ है सब, तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ. ठीक है. सबसे पहला हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे. ग्रुप क्यों क्रिएट करेंगे कि हमारा फिनिश गुड अलग और रॉ मटेरियल अलग अलग शो करना चाहिए हमको. तो उसके लिए हम जाएंगे क्रिएट में, सेकेंड स्टॉक ग्रुप,
ठीक है। यहाँ से हम जो भी नाम है, जैसे फिनिश गुड और रॉ मटेरियल करके अलग अलग गुड, अलग अलग ग्रुप क्रिएट करेंगे। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। अल्टर स्टॉक ग्रुप फिनिश गुड एंड रॉ मटेरियल। ठीक है, ठीक है। अभी हम एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करते हैं। कंप्यूटर बनाने के लिए अब हम लोग को क्या क्या लगता है, जैसे सीपीयू लगता है, एचडी हार्ड डिस्क लगता है, रैम लगता है, ग्राफिक कार्ड लगता है, कीबोर्ड लगता है, माउस लगता है। ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद हमारा एक कंप्यूटर जनरेट होता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके जो भी रॉ मटेरियल है वो क्रिएट करेंगे। वो क्रिएट करने के लिए क्रिएट पे जाएंगे, स्टॉक आइटम पे जाएंगे, यहाँ से वन बाय वन हम रॉ मटेरियल क्रिएट करेंगे। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सीपीयू है, ग्राफिक कार्ड है, हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड है एंड माउस एंड रैम। ठीक है, सीपीयू अंडर आपको लेना है रॉ मटेरियल। हाँ, जो भी आपका ग्रुप है वो आपको सेलेक्ट करना है। देन यूनिट लेना है, और आपके हिसाब से आपको जो भी जीएसटी अप्लीकेबल वगैरह है वो सब अप्लीकेबल करना है। एचएसएन कोड रेट डालना है, वो डाल सकते हो आप। ठीक है, नाउ ग्राफिक कार्ड भी मैंने एज इट इज क्रिएट किया हुआ है। हार्ड डिस्क भी। ठीक है, ये सब मेरे रॉ मटेरियल है। मेन अपना फिनिश गुड कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को मैंने कैसा क्रिएट किया हुआ है, अंडर इसको रखा है मैंने फिनिश गुड में। यहाँ पे ना ये जो ऑप्शन आफ्टर कंपोनेंट, अल्टर कंपोनेंट, बिल्स ऑफ मटेरियल, ये ऑप्शन आपको यस करना है। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं शो करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको F12 प्रेस करना है। ये ऑप्शन सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल्स ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम, ये ऑप्शन आपको यस करना है। जैसे ये ऑप्शन आप यस करेंगे तो ये ऑप्शन आपको हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर यस करना है। ठीक है, मैंने इसके अंदर मल्टीपल बॉम्ब बना के रखा हुआ है। आप हम सिर्फ अभी एक बॉम्ब देखेंगे। जैसे मैंने एक बॉम्ब का नाम दिया है स्टैंडर्ड बॉम्ब, स्टैंडर्ड बॉम्ब। ओके, यहाँ पे मैं कितना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, एक क्वांटिटी। यहाँ पे आपको एक क्वांटिटी ही रखना है एवरी टाइम। ठीक है, अभी मेरा मुझे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर बनाने के लिए मुझे क्या क्या रॉ मटेरियल लगते हैं वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है एक एक करके। जैसे कि मुझे सीपीयू लगता है 1, ग्राफिक कार्ड लगता है 1, हार्ड डिस्क लगता है 1, कीबोर्ड लगता है 1, माउस एंड रैम। रैम किसी किसी कंप्यूटर में 1 लगते हैं, 2 लगते हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 ले लिया है। ओके, ठीक है, सेम बॉम्ब 2 भी मैंने इसी बनाया हुआ है। ठीक है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। स्टॉक आइटम आपका क्रिएट होने के बाद आपका सबसे पहला प्रोसेस है स्टॉक को परचेस करना, क्योंकि जब तक आप स्टॉक परचेस नहीं करेंगे तब तक आप इसको मैन्युफैक्चर भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने पूरा प्रोसेस किया हुआ है। परचेस करने से पहले परचेस ऑर्डर बनता है, फिर रिसिप्ट नोट बनता है, फिर परचेस बनता है। तो उसके लिए मैंने पूरा प्रोसेस किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। डिस्प्ले बेबू, मैंने पहला परचेस ऑर्डर किया। ठीक है, ये परचेस पार्टी से जो भी डिटेल्स रहेगा वो आपको फीड करना है। यहाँ पे मैंने ऑर्डर नंबर डाल दिया है PO001। ओके, यहाँ पे मैंने एक एक करके जो भी रॉ मटेरियल है पहले वो परचेस कर लिया है, 100 क्वांटिटी। आपको चाहिए तो आप अलग अलग गोडाउन में भी इसको परचेस कर सकते हो। ओके, ये मेरा हो गया परचेस ऑर्डर। अभी परचेस ऑर्डर करने के बाद अपना सेकंड रिसिप्ट नोट। ठीक है, रिसिप्ट नोट भी मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, जैसे आप पार्टी का नाम लेंगे आपको यहाँ पे पूछेगा ट्रैकिंग नंबर, जो आपने PO नंबर दिया रहेगा वो यहाँ पे आपको शो करेगा। तो आपको इसको सिर्फ ट्रैक करना है, इसको लेके Ctrl A।
कंट्रोल A। ओके, जितने भी आइटम आपने पीओ में लिए रहेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ट्रैक हो जाएंगे, आपको सिर्फ सेव करना है। हाँ, अगर लास्ट में आपको जीएसटी वगैरह लगाना है तो आप लगा सकते हो, CGST या GST वगैरह। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, डायरेक्ट परचेस किया है। परचेस करते समय मैंने रिसिप्ट नोट को ट्रैक किया है। ओके, और जैसे ही मैं परचेस करता हूँ वैसे स्टॉक समरी में जो भी मेरा रॉ मटेरियल अलग अलग मुझे दिख रहा है, रॉ मटेरियल अलग और फिनिश गुड अलग। तो रॉ मटेरियल मैंने जितनी भी क्वांटिटी मैंने परचेस किया वो आपको शो करेगा, पूरा का पूरा टोटल। ठीक है, अभी परचेस करने के बाद आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्रिएट पे जाना है, वाउचर टाइप पे जाना है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का एक वाउचर टाइप क्रिएट करना है, मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, आपको दिखाता हूँ मैं। वाउचर टाइप MFG जर्नल। ओके, MFG जर्नल क्रिएट किया है मैंने, इसको अंडर रखा है मैंने स्टॉक जर्नल में। ध्यान रखना, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन यूज करना है, यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, ये ऑप्शन आपको यूज करना है। ठीक है, जैसे ही मैंने ये क्रिएट कर दिया, फिर मैं वाउचर पे जाऊंगा। यहाँ पे जर्नल है, इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा स्टॉक जर्नल। जैसे आप स्टॉक जर्नल पे क्लिक करते हैं तो आपसे पूछेगा स्टॉक जर्नल या मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करेंगे आपसे सबसे पहला पूछेगा नेम ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट में कभी भी आपका फिनिश गुड आएगा जो आप बना रहे हैं। जैसे मैं एक कंप्यूटर बना रहा हूँ तो यहाँ पे कंप्यूटर आएगा। ठीक है, मैंने दो अलग अलग बॉम्ब बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि मुझे कौन सा बॉम्ब सेलेक्ट करना है करके। ठीक है, यहाँ पे मैं एस्केप करता हूँ, मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो दिखाता हूँ मैं जर्नल। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंप्यूटर लिया, कंप्यूटर मुझे कितना क्वांटिटी बनाना है, 50 क्वांटिटी बनाना है। ठीक है, जैसे ही आप 50 क्वांटिटी यहाँ पे लेंगे तो जो भी कंप्यूटर के अंदर आपने बिल्स ऑफ मटेरियल सेट किया है, जो भी रॉ मटेरियल सेट किया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेंगे आपको। ठीक है, मान लीजिए आप 50 क्वांटिटी बना रहे हैं तो उसके हिसाब से जो भी रॉ मटेरियल की क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पे 50 लिया मैंने तो सब जगह 50 आ गया, फिर सिर्फ रैम को छोड़ के रैम में 100 आया। 100 क्यों आया है, बिकॉज मैंने वहाँ पे 1 की जगह 2 सेलेक्ट किया था, 2 डाला था। तो एक कंप्यूटर बनाने के लिए मुझे 2 रैम लगते हैं, तो 50 कंप्यूटर बनाने के लिए मुझे 100 रैम लगेंगे। तो ऐसे ये सब ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कंप्यूटर तो उसमें आपका लेबर खर्चा, लेबर चार्जेस, एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये सब लगते हैं, तो वो सब भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने ऐड किया है लेबर चार्जेस, जो अंडर रखा है मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, यहाँ पे आप परसेंटेज वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट अमाउंट भी डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल लिया मैंने, यहाँ पे मैंने अमाउंट डाला। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम, ये एकदम लास्ट ऑप्शन देखिए, इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम 2304 मीन्स मेरा एक कंप्यूटर बनाने के लिए मुझे इतना कॉस्ट लगता है 2304। ठीक है, ये आपका यहाँ से कॉस्ट एस्टिमेट भी हो गया। तो नरेशन में आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, जो भी आपके हिसाब से आपको टाइप करना है वो नरेशन में आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, मेरा एक कंप्यूटर मैंने 2304 में बनाया है अगर ऐसा। ठीक है, जब आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट कर दिया तो कंप्यूटर आपका 50 क्वांटिटी स्टॉक में आ गया है। डिस्प्ले में जाके देखेंगे आप,
अरे सॉरी, स्टॉक समरी में जाके देखेंगे ना आप, फिनिश गुड, यहाँ पे आपको कंप्यूटर दिखेगा 50 क्वांटिटी, बिकॉज मैंने सेल किया है 20 क्वांटिटी ऑलरेडी, इसीलिए आपको 30 दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं डे बुक में गया, यहाँ पे मैंने सेल्स में गया। ठीक है, सेल्स करने से पहला मैं इसका भी पूरा प्रोसेस करूंगा, सेल्स ऑर्डर करूंगा, फिर डिलीवरी नोट पास करूंगा, फिर सेल करूंगा। तो सबसे पहले मैंने सेल्स ऑर्डर किया है, सेल्स पार्टी को जो भी डिटेल्स रहेगा वो सब डाल देना है आपको। यहाँ पे सेल्स ऑर्डर का नंबर आ जाएगा, यहाँ पे सेल जीएसटी, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कंप्यूटर जो मेरा फिनिश गुड है। ठीक है, मेरे पास 50 क्वांटिटी था तो मैंने 20 क्वांटिटी सेल कर दिया। ठीक है, ये सेल्स ऑर्डर हो गया। सेल्स ऑर्डर को एज इट इज मैं डिलीवरी नोट में ट्रैक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर नंबर आ जाएगा, सेल्स ऑर्डर यहाँ पे ट्रैक किया मैंने। ठीक है, यहाँ पे बस आपको सिर्फ सीजीएसटी एसएसटी लगा देना है। नाउ सेल्स, जो भी नंबर है वो आपको ट्रैक कर देना है। ठीक है, मैंने मेरा एक कंप्यूटर बनाने के लिए मुझे 2304 का परचेस रेट आता है, मैंने सेल किया है 5000 में, तो एग्जैक्टली मेरा प्रॉफिट ही हुआ है। ठीक है, अब आपको अगर रिपोर्ट्स वगैरह देखने हैं अलग अलग ग्रुप वाइज या रॉ मटेरियल वाइज, तो आपको स्टॉक समरी में भी आप चेक कर सकते हैं। फिनिश गुड, रॉ मटेरियल अलग अलग आपको ग्रुप वाइज शो कर रहा है। या फिर आप डिस्प्ले में जाइए, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट एस्टिमेशन, यहाँ पे मैं फिनिश गुड सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा फिनिश गुड, ये मेरा कॉस्ट है 2250, और ये सब मेरे रॉ मटेरियल का कॉस्ट यहाँ पे आपको शो करता है। यहाँ पे F12 करके आप जो भी ऑप्शन आपको यस नो करने हैं, कॉस्ट देखना है, अमाउंट देखना है, कंसिडर डिटेल्स में देखना है, तो आप यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये सेलेक्ट किया ऑल बॉम्ब, मैंने वहाँ पे 2 बॉम्ब बनाया था, तो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना पूछा डिफॉल्ट ओनली या फिर ऑल बॉम्ब, जो मैंने यूज किया है सिर्फ वही देखना है या फिर जितने भी मैंने क्रिएट किया है वही देखना है। तो यहाँ से आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, नाउ हम देखेंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिखने लगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे 56,200 का अपने हमको प्रॉफिट हुआ है करके ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, फिनिश गुड का जो रेट है क्लोजिंग स्टॉक का 69,000, रॉ मटेरियल का रेट है 56,620, अपना प्रॉफिट है। ठीक है, ओके सर, डन हो गया सर। Thank you. Thank you so much for the demo. So now it's over to you, Mr. Bhagwati. So request you to please move ahead with the overview towards today's topic. So, thank you, Deepa. So, thank you, everyone. Myself is Bhagwati. Good evening, everyone. Myself is Bhagwati Dhandaria from Rajalakshmi Solutions Private Limited. So, right now we are seeing the demo of the manufacturing processes. चूंकि हमने काफी इन्वेंटरीज एंड काफी चीजों पे डेमोन्स्ट्रेशन ऑलरेडी किए हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मेनी ऑफ द पीपल्स आर यूजिंग द टैली ओनली फॉर द अकाउंटिंग एंड इन्वेंटरी पर्पस, बट वी कैन मैनेज द ऑल द प्रोसेसेस in our manufacturing industries. We can manage all the stages and steps and all the processes, various type of the steps and various type of semi goods, semi finished, finished,
job work, in, out, everything we can manage through the Tally itself. So यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जैसा कि आपको विक्रम ने बताया और फिनांस ने भी आपको थियोरेटिकल आपको बताया कि हाउ वी कैन मैनेज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस इन द टैली प्राइम। और टैली प्राइम में वो पावर है जहाँ पर आप एक ही आइटम को बनाने के लिए मल्टीपल टाइप ऑफ द बॉम्ब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन द आयरन एंड स्टील कंपनीज, जहाँ पर हम देखते हैं कि कई एक ही प्रोडक्ट को बनाते हैं, जहाँ उनका वेट कम, किसी केस में कस्टमर बोलता है मुझे इतने वेट में ये मटेरियल बना के चाहिए, ये साइज, ये मटेरियल्स, ये फिनिश गुड्स मुझे इस केजी वेट में चाहिए। दूसरा कस्टमर आता है कि मुझे थोड़ा सा वेट और ज्यादा चाहिए। तो ये जो वेरियस टाइप ऑफ द कंपोनेंट हमें यूज करने होते हैं, लाइट वेट एंड या हैवी वेट, तो वेरियस टाइप ऑफ बॉम्ब के थ्रू हम उसको मैनेज कर पाते हैं, जिसको हम लोगों ने आज यहाँ देखा है। इसके अलावा जब हम कोई भी प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट वी विल क्रिएट अ मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल्स, और रॉ मटेरियल्स के इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह एवरीथिंग वी विल जस्ट purchase entry, pass the purchase entry, and we will take the stock in the through the purchase entry, and also take the compliance in terms of the input tax credit, GST credit. And we can also maintain through the different godown and warehouse, जहाँ पर हमारे पास अलग अलग गोडाउन्स होते हैं, अलग अलग वेयर हाउसिंग होते हैं, तो उसको भी हम मैनेज कर पाएंगे। और जब एक मटेरियल आता है वो एक डिफरेंट यूनिट में आता है, फॉर एग्जांपल कोई मटेरियल केजी में आ रहा है, कन्वर्जन के पास साथ में वो हमारा पास पीस में या नंबर्स में, पीस में या मीटर्स में, वेरियस टाइप ऑफ द थिंग्स वो पॉसिबिलिटी हो जाती है, जहां पर हम उसको फिनिश करते हैं। फिनिश गुड्स को हम जब सेल करते हैं तो हम नंबर्स में कर रहे हैं, या मीटर में कर रहे हैं, या लिक्विड फॉर्म में कर रहे हैं। तो ये सभी चीजों को, जहां मैं लिक्विड फॉर्म की बात कर रहा हूँ, देयर इज वेरियस टाइप ऑफ द इंडस्ट्री इन द केमिकल्स एंड लाइक दैट। सो ये सभी चीजों को हम लोग यहाँ पर मल्टीपल यूनिट के थ्रू मैनेज कर पाते हैं। सेम तरीके से हमारे पास अब एक मटेरियल आया, इसके बाद में हमने कोई फिनिश गुड्स बनाना है, हमने फर्स्ट लेवल का वर्किंग हमारे इन हाउस इंडस्ट्री कंपनी में होना है। सेकंड लेवल ऑफ द सेकंड लेवल ऑफ द जो प्रोसेस है वो हमारा होना है हमारे इंडस्ट्रीज में दूसरे स्टेप पे। थर्ड, हमें आउटसोर्स करना है किसी को, जॉब वर्कआउट। उसके बाद में हमें जॉब वर्कआउट होने के बाद में उसको हमें फिर से अंदर लेना, फिर उसको फिनिशिंग, फाइनल फिनिशिंग टच देना, उसके बाद में हमें फिनिश गुड्स में डालना और उसको सेल करना। तो ऑल दिस प्रोसेसेस, ये सभी प्रोसेसेस को हम यहाँ पर टैली के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मेंटेन कर पाते हैं, जिसके हम वेरियस टाइप ऑफ द रिपोर्ट, कॉस्ट एनालिसिस, वो सभी को हम कर पाएंगे। इसके साथ साथ उसका इफेक्ट कंप्लायंस की मैं बात करूँ, जीएसटी में भी होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स एंड एवरीथिंग यू कैन मैनेज। सेम तरीके से स्टॉक, वेरियस टाइप ऑफ स्टेजेस में हमारे स्टॉक कौन से स्टेज में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, वो सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ देख पाते हैं। तो ये सभी चीज़ों को हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट बड़ा चैलेंजिंग आता है, वो सभी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। और इसके अलावा हमारे पास कोई भी एक फॉरकास्टिंग वगैरह भी हम यहाँ कर पाएंगे कि हमने एक मटेरियल बनाना है, तो प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट के सामने हमने फोरकास्ट करना है कि हमने कितना मटेरियल चाहिए होगा। तो ये सभी चीज़ें भी, ये कैपेबिलिटी है टैली प्राइम में, जहाँ हम कस्टमाइजेशन के थ्रू हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि आज मेरे पास 1000 पीस कंप्यूटर बनाने हैं। आज मैंने एग्जांपल विक्रम ने कंप्यूटर का लिया, तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ द कंप्यूटर में हम 1000 पीस कंप्यूटर बनाने हैं, तो मुझे कितना मटेरियल मुझे चाहिए और मुझे डिलीवरी कब देनी है, उसके हिसाब से मुझे मटेरियल कहाँ से कितने कितने मंगाने हैं, कितने स्टॉक में, कितने परचेज ऑर्डर में है, वो सभी का फोरकास्टिंग और उसके हिसाब से हम अपनी प्लानिंग ले सकते हैं। तो ये चीजें एडवांस लेवल पे हम कस्टमाइज भी कर पाएंगे टैली प्राइम के अंदर। तो आज की डेट में मैं ये बोलूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टैली हैव ए पावर, टैली प्राइम हैव ए पावर कि यू कैन मेंटेन योर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट with the all complete inventory, with all the visibility of the compliance and taxations and that costing methods. So वो सभी चीजों को देखते हुए you can manage seamless manufacturing process in Tally Prime. So that's it from my side. Yeah, Deepa, now it's over to you. Thank you. All right, so now let's see the question and answer session. So if people have any question, let's go into the discussion. So just check into your account, Mr. Bhagwati. If you have any questions, you can just address that questions. So people request you to please address your questions through comment box, or request you to please raise your hand such that we can get a clarity onto this.
So request you to please just check, is there any question in your comment box? No, Deepa, right now we have not any questions. All right. Other people, so altogetherly, this is all about manufacturing process. Apart from this manufacturing, we have multiple features, which is really going to make flexible your work, and at the same time it is very, very essential that we have to know all the features. So request you to please check the YouTube channel to know the different features of Tally Prime. So I think Mr. Mustafa have a question. Mr. Bhagwati, can you please see to it? Yeah, but question is not there. They are raised a hand. Mr. Mustafa, can you please drop your question in the comment box? All right, no issues. So if you have any question, request you to please drop your question in the comment box, such that we will address your questions. So as I already said, if you have any requirement of software, any requirement of customization or advisory service, we are part of it. So we just check out the history of your organization and ensure that you get the right advisory service in terms of software or in terms of services. Might be all about customizing the same work what you're doing with multiple flexibilities. We are here to customize the software as well. And as you already said, our YouTube channel also acts as an academy, so you can just watch all the videos which is present in the YouTube channel. And apart from this, weekly we usually take the on-demand topics, and we ensure that the topic has been delivered to the spectators and the clients. So if you have any topic suggestion, we are open for that. So request you to please do connect us to submit your feedback in terms of webinar, or to submit your feedback in terms of topic. We are very open to accept these things. So you can check the comment box. So the contact details and the details of social media has been submitted. So please do click the link now itself. Do connect the take down the contact details now itself. So any other thing to add? So Sagar, yeah, Sagar and Pinaj, do you have any? Sorry, I'm so sorry. Vikram and Miss Pinaj, do you have anything to add on here? No, ma'am. All right, thank you so much. So, Mr. Bhagwati, would you like to add on something here? No, Deepa, I think we give the more clarity on the all the processes. So thanks from my side. Thank you so much, Mr. Bhagwati. So altogetherly, we are done with the topic of manufacturing process. But yes, there might be multiple questions as well. And when you start looking into this, there might be multiple scenarios wherein you might have certain doubts towards the software or theoretical information. Do connect us. We are here to again give you a personal training or personal demo towards the software as well. So that's it for today. Thank you so much for your time and patience. And let's see in some other topic in the next webinar. So thank you. Stay tuned. Take care and stay safe.